Good morning, students. I'm very glad to inform you that today is the 1st February and it is known as the budget day of our country. Every year our respected finance minister announce the budget, and today also Nirmala Sitharaman ji is going to announce the budget at front of entire country, and which has been passed in both of the houses of parliament by Honorable President Shri Ramnath Kovind ji. So before starting this presentation, I would like to share some information related to budget. There is budget. So firstly, what is budget? If that is the question which are in our mind, कि budget actually है क्या? So in simple language, beta, budget is the statement which consider all the receipt and all the expenditures of the country. Means country के जितने भी expenditures हैं, जितना भी revenue country को मिलता है in the phase of taxes और non tax receipt, जितना भी हमारे पास पैसा आता है, and in किसी भी field में हम उसको जो भी expenses country हमारे country के ऊपर करती है, government करती है, that is the expenditure. So all the sum of, or we can say the sum total of all the expenditure and all the revenues is known as budget. ठीक है? In simple language अगर हम एक छोटे से यूनिट पर देखें, every family needs a budget to maintain the family. कि भाई जो भी जो head of the family है, whatever his income is, starting of the month he prepares the budget, he or she prepares the budget for the entire month. Same as government also prepare the budget for the entire year, and every year on 1st February government or finance minister announce this budget. Okay, so there are three main documents of budget that are annual financial statement. What is annual financial statement? It is a document which comes under the article 112, जिसके अंदर जितनी भी हमारी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स हैं उन सारी चीजों के बारे में. इट इज द एस्टिमेशन ऑफ ऑल द receipt and expenditure. Secondly is finance bill. As the name is suggested, finance bill is the bill which shows the all the borrowing and all the revenue which government does. मतलब जितनी भी borrowing हमारी है, चाहे वो IMF की तरफ से है borrowing, चाहे वो IBRD की तरफ से है, या जितनी भी revenue हम collect करते हैं, उन सब चीजों का एक document है. And the third is appropriation bill. So appropriation bill क्या है? It is known as spending bill also. Means it set the budget aside for the specific field. कि मतलब हर एक field के लिए जो एक specific amount तैयार की जाती है, that is that kind of bill, right? Now economic survey. What is economic survey? Economic survey is a document of ministry. The Economic Survey of India reviewed the development in the Indian economy over the past financial years, analyzes the performance on major development programs, and highlights the policy initiatives of the government and the perspective of the economy in the short medium term. Means last years के जितने भी expenditures हैं, जितने भी financial performance रही है, उन सब चीजों को देखते हुए जो गवर्नमेंट फोरकास्ट करती है कि इन फ्यूचर में कहाँ पर किस किस तरीके से खर्चा करना है, क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें हाईलाइट करनी है, कहाँ पर हमें अपना पैसा लगाना है, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे. ओके, आफ्टर दैट रेलवे बजट. इट इज मीन्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और काइंड ऑफ जीके. आई वुड लाइक टू शेयर यू ऑल. इनिशियल पीरियड जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो बजट होता था वो किस तरीके से आता था बेटा? वो आता था 2016 तक की रेलवे बजट एक अलग आता था और बाकी का हमारी यूनियन बजट अलग आता था. ओके, बट आफ्टर 2016 मींस इन 2017 कैसा होने लगा? ये होने लगा कि जो बजट था रेलवे बजट और हमारा जो यूनियन बजट है उसका मर्जर हो गया. अब कंट्री का जितना भी बजट आता है वो पूरा सेम डे आता है. ठीक है, एक साथ आता है. Now
let's start the budget with its definition. Government budget is the statement of the estimates of the government receipt and the government expenditure during a period of financial year. एक financial year के अंदर गवर्नमेंट की जितने भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स जो होती हैं उनका ही जो एस्टिमेशन होता है दैट इज कॉल्ड बजट, राइट। अब इस साल का क्या है, इस ईयर का ये है, आज वी नो दैट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 GDP इज गेटिंग लो, और मतलब जितना भी हमारा जो प्रोडक्शन का काम है, जितने भी यूनिट, चाहे वो इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ऑल द प्रोडक्शन वर्क इज गेटिंग स्लो डाउन। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इकोनॉमी है इट इज ऑल्सो गेटिंग क्राउडिंग आउट, राइट। तो टू कवर दिस क्राउडिंग आउट सिचुएशन क्या हुआ है कि बजट को इस तरीके से हमें लाना है, या इस तरीके से गवर्नमेंट ने बजट प्रिपेयर किया है जो वो पीछे जितनी भी शॉर्टफॉल्स हुई हैं जिसको कि कवर किया जा सके। सो इस चीज़ के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो ICC है, द यूनियन बजट 2021 विल कम्स द इकोनॉमिक वैक्सीन। तो इस बार का जो हमारा बजट है वो काइंड ऑफ इकोनॉमिक को एक वैक्सीन टाइप्स है जो कि हमारे बजट को थोड़ा ग्रूम अप करेगी, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को थोड़ा ग्रूम अप करेगी। जो भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई है उसको थोड़ा डेवलप करेगी, राइट। सो व्हाट आर द स्कोप्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट दिस ईयर, क्या क्या चीजें उसमें हमारी मेनली रहने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन, hope to see welcoming the changes toward the health and wellness sector। सबसे पहला जो हमारा एक्सपेक्टेशन है इस ईयर के बजट से वो ये है कि आफ्टर कोविड-19 जो हेल्थ सेक्टर है इट इज रनिंग ऑफ, कि मतलब जो लोगों की हेल्थ है वो काफी इफेक्ट हुई है, एंड टू कवर इट अप एंड टू डेवलप इट अप। इस चीज के लिए क्या है कि बजट का जो एक सेक्शन है वो जाएगा हमारे हेल्थ सेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज focuses on youth sports on need to health education and development of goal of the country। स्पोर्ट्स के लिए जितने भी गेम्स वगैरह हैं स्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर किया जाएगा थोड़ा सा खर्चा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द सेक्शन ATC लिमिट्स एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस स्लैब्स। जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको रेशनलाइज किया जाएगा जिससे कि फायदा पहुंचने वाला है सीधे उन लोगों को who are the taxpayer of the country। Next is encouraging investment in private healthcare infrastructure and healthy India। इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए कई चीजें आएंगी, कुछ तरीके की हो सकता है सब्सिडीज दे विल प्रोवाइड अस। नेक्स्ट इज expectation for defense and budgeting, as we are seeing that in all around the country borders पर बहुत ज़्यादा they are facing the problem from China's side or from Pakistan or all over the side। so बजट का एक जो मोटो होगा वो ये भी रहेगा कि डिफेंस के लिए भी इससे काम किया जाए। नाउ just like the last few years, the Union Budget 2021 will be on table in Lok Sabha on Friday। It will be the third budget of Nirmala Sitharaman। क्या कह सकते हैं कि जैसे मैं बताई है कि finance minister always present the budget in front of country, and right now we have Mrs. Nirmala Sitharaman। She is going to present the budget or announce the budget, and it is her third budget which she is being presented। Okay, now the actual objective of budget, कि हम एक्चुअली बजट बनाते क्यों हैं। बजट बनाते हैं हम थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इट मीन्स दैट whatever the income country is getting, जो भी हमारी कंट्री के अंदर इनकम होती है फ्रॉम ऑल ऑफ द सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और प्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन के थ्रू हो रहा है, जिस भी सेक्टर के थ्रू हमारी इनकम हो रही है, तो इनकम होना डजंट मीन कि जिसने काम किया उसको मिल गया। कंट्री का डेवलपमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस कि अगर फिनेंस अगर सेंट्रलाइज हो जाए, मीन्स पूरा जितना भी फिनेंस अगर वो एक के हाथों में रहे कि वो वन हैंड हो जाए, तो इट इज नॉट प्रोग्रेसिव, इट इज नॉट
पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का पार्ट तो तब बनेगा जब वो इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जितना भी सपोज प्रोडक्शन सेक्टर से हमारे पास इनकम आई तो इस इनकम को हम पूरी कंट्री के हर एक फील्ड में मीन्स ऑल द फील्ड विच आर रिक्वायर्ड द फाइनेंस उसमें हम जो डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कहीं ऐसा ना हो, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि सपोज हमारे पास बजट नहीं है, अब हमारे पास सामने से जो भी एक्सपेंसेस आए हमने सारा उसमें खर्चा कर दिया एंड सपोज इट इज नवंबर एंड दिसंबर एंड अचानक से कोई नेचुरल कैलामिटी आती है एंड देयर इज नो मनी टू डील विद इट, है ना। सो फॉर फेसिंग ऑल दिस काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर और एनी अदर डिजास्टर्स we maintain the budget to deal with every kind of circumstances. We used to prepare the budget. Next is managing public expenditure. Public expenditure में क्या है कि जो भी गवर्नमेंट जो है पब्लिक के ऊपर जो भी खर्चा करती है, जो भी एक्सपेंडिचर करती है, उसको मैनेज करने के लिए कि हमें किस सेक्शन पर ज्यादा खर्चा करना है, किस एरिया पे हमें ज्यादा खर्चा करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। Now the main important point is the component of budget. So the component of budget is budget receipt and budget expenditure. Budget is made up of two major components, that is budget receipt and budget expenditure. After that, budget receipt also split into two parts, is the revenue budget and the capital receipt. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट इज द रिसिप्ट जिसमें कंट्री को पैसा मिलता है एंड द कैपिटल रिसिप्ट इसमें भी पैसा मिलता है, कंट्री में आता है बट इज इन अदर फॉर्म। वी विल डिस्कस दिस लेटर। रेवेन्यू रिसिप्ट split into two parts, that is tax receipt and non-tax receipt. Tax receipt in which country gets the receipt in the form of tax like income tax, corporate tax, estate duties, gift tax, custom duties, excise duty and sales tax, right? जितना भी टैक्स के रूप में हमें पैसा मिलता है, the base of tax, whatever the money country is getting is the tax receipt. Other than there is non-tax receipt. What is non-tax receipt? Is the receipt in which country gets the money, country gets the receipt in the form of non-tax, means tax नहीं है but somewhere else when country get the receipt is known as non-tax receipt. इसमें आता है सबसे पहले आपका फी, मीन्स जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो भी फीस का स्ट्रक्चर होता है उससे आने वाला जितना भी पैसा होता है दैट इज फीस। नेक्स्ट इज एस्टीट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एस्टीट? एस्टीट इज द अमाउंट जो कि कभी ऐसा होता है कि सपोज कोई एक पर्सन है, सपोज देयर इज मिस्टर एक्स who hasn't maintained his bill for the property, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की बिल नहीं बनाई है एंड सडनली बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक ही पास्ड अवे, वो किसी भी डिजीज एक्सीडेंट में वो उनकी डेथ हो जाती है। सो व्हाट विल हैपन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? बिकॉज देयर इज नो बिल, नोबडी कैन गिव दैट अमाउंट टू देयर चिल्ड्रन और एनी अदर पीपल, तो उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगी। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनसे आने वाली जो भी इनकम है दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्सेस। आफ्टर दैट ग्रांट एंड डोनेशंस, गवर्नमेंट सेक्टर्स में कॉलेजेस में जितना भी डोनेशन वगैरह जो मिलती है ली जाती है किसी भी एडमिशन या किसी भी चीज की, दैट इज ग्रांट डोनेशन। नेक्स्ट इज फाइन, जो भी फाइन पेनल्टीज वगैरह जो हमें पे करनी पड़ती है, सपोज वी आर नॉट एबल टू पे द बिल ऑन टाइम्स और फीस हमने अगर टाइम में नहीं पे करी है तो पेनल्टी एक लगाई जाती है, फाइन पे किए जाते हैं, दैट इज द सेम फाइन which comes under the non-tax receipt. After that, special assessment. What is special assessment? Special assessment when the value of a specific area gets increased due to the construction of government. Government की किसी construction की वजह से जब किसी एक specific area की value increase हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो बढ़ी हुई जो वैल्यू है that also comes under the government treasury, that is called special assessment.
जिसके लिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं ये कहूंगी कि इफ वी सी पास्ट फ्यू इयर्स, बिफोर पास्ट फ्यू इयर्स, तो हम क्या देखेंगे कि जहां पर अभी एम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है वहां का लैंड इतना भी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं था, बट जस्ट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्स, जब से वहां पे एम्स आया है, गवर्नमेंट का इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आया है, उसकी वजह से स्पेसिफिक एरिया की वैल्यू जो है काफी एकदम से हाई हो गई बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन। तो दिस काइंड ऑफ receipt also comes under the non-tax receipt. Next is income from sales of spectrum, जो भी 2G 3G spectrum जो घोटाले होते हैं उनका जो भी अमाउंट आता है that is also comes under non-tax receipt. Other one is capital receipt. What is capital receipt? Capital receipt में आता है आपका all the borrowing and the liabilities, जितनी भी borrowing होती है चाहे वो IMF के थ्रू हमने borrow किया है पैसा या कहीं से भी पैसा borrow किया है, that comes under capital receipt. There is other receipt, जो other types of receipt होती है, recovery of loan, जब भी लोन की रिकवरी होती है उससे जो पैसा आता है that is also capital receipt. Now come to the budget expenditure. What is budget expenditure? Means all the expenditure which government does for country, government जो भी country के लिए जो भी खर्चे करती है that is government expenditure और budget expenditure. It is splits also into two parts, that is revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure में आता है आपका wages bill of government, means whatever the wages government pays to their employees, जो भी wages salary वगैरह में जो भी bills वगैरह में जो जाता है that is wage bill, that comes under revenue expenditure. Interest payment, whenever government pays the interest on the loan or any other borrowing, जिस भी चीज पर on डिपॉजिट पर जो भी हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है that is interest payment. एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, जब भी गवर्नमेंट हमें कोई सब्सिडी प्रोवाइड करती है पीपल्स को या प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है मार्केट प्राइस के लिए, that also comes under revenue expenditure. एंड डिफेंस परचेज, जो भी डिफेंस परचेज, डिफेंस के लिए मीन्स बॉर्डर पर जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उनके खर्चे के लिए जो भी परचेज किया जाता है वो सब जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है. आफ्टर दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें आता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, बिकॉज व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द काइंड ऑफ एसेट विच वी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, है ना. तो उस कैपिटल में आ जाता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, एज यू ऑलरेडी नो. तो उस लैंड और बिल्डिंग पर होने वाला जो खर्चा होता है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर हम जो भी खर्चा करते हैं वो. एंड नेक्स्ट इज परचेज ऑफ शेयर, जो गवर्नमेंट जो भी परचेज करती है शेयर को, शेयर्स परचेज करती है, बॉन्ड परचेज करती है, वो सारी चीजें. एंड देन लोन बाय सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक से हम लोन लेते हैं या स्टेट बैंक से जो भी लोन लेते हैं, मतलब सेंट्रल बैंक जब भी लोन देती है स्टेट बैंक्स को, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आती है. ठीक है. नाउ देयर इज revenue deficit. What is revenue deficit? Revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. कि रेवेन्यू में जितना भी खर्चा हुआ उसमें से जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देते हैं दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज फिस्कल डिफिसिट, मींस द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल एक्सपेंडिचर एंड ओवरऑल रेवेन्यू, दैट इज फिस्कल डिफिसिट. एंड लास्ट इज प्राइमरी डिफिसिट, दैट इज फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. So that is all about the budget. Hope you guys enjoy it, and so take care. Bye.